पोल खुल गई अभी तो पूरा. So my first kiss was to a girl, to be honest. I'm straight. I'm very straight, to be honest. Yeah, but my first, I'm straight, of course. I'm very जब straight. आपका प्रोड्यूसर Yeah. इतना Mine. बोल्ड होता है तो But Husband yeah, सामने it's बैठा है. inspired by that. It's not, of course, it's not my All film. I had to do was observe Gunjan from morning to night. So I had a blast because she's a very colorful personality and very entertaining. So I never got bored and I had a great time shooting thanks to just observing Gunjan. Okay, that's fantastic. And sir, I have a question for you. Sure. How was your entire experience and what was the masti part in the entire shoot thing? So Masti part was like being part of the group, the whole production team. You know, हम लोग का actually एक group बना and we call it Hum Panch. Hum Panch. And we still do a lot of masti in that group. So when I went for the shoot for the very first time, of course it was very, eye-opening for me because unlike other stars, I am a newbie actually. So I am from the US, I am a true NRI. I've been living there for like 26 years. But again, in सबसे मिलके ये सब तो since these guys are also NRIs, those five girls, and I was the only guy. And a lot of masti, lot of fun, of course, and then Hiten joined there, and he also joined our group. And we also dragged him into all the conversation, all the fun masti part into it. Of course, Bhagyashri was there, and I remember I was driving her from one place to other place. I was doing multiple jobs actually, by the way. Yeah. So I was doing this, yes, all of us actually. So lot of fun. So we were singing in the car. We were doing a lot of fun when we were not shooting, and it was total fun experience. Fantastic, fantastic. आपकी accent से ही हमें समझ में आया आप US return hiker के, but ठीक है. So I would request Chandra ji, where are you? Yeah, Chandra ji, I would just request you to be on stage like for a few seconds, and please ये जो गाना है आप एक बार हमारे लिए गुनगुना दीजिए. ये गाना तो सब सुन चुके हैं एक्चुअली. इफ आई मे रिक्वेस्ट, हम एक नेक्स्ट गाना अपना रिलीज करने वाले हैं. Sure. जी, कौन कहता है, जो मेरे वन ऑफ माई फर्स्ट क्रश समीर सोनी और मेरे पे फिल्माया गया है. एंड अब मैं आई डोंट वांट टू एक्ट एनीमोर, आई जस्ट वांट टू प्रोड्यूस, बिकॉज मेरे दो क्रशेस थे, एक जुगल हंसराज और समीर सोनी, और दोनों को अपनी फिल्म में अपने साथ विद गॉड्स ग्रेस was able to act with them. So चांदना जी, I would request you कि वो कौन कहता है जो हमारा next Z Music पे रिलीज होने वाला है, उसकी 2 lines प्लीज सुनाइए. Okay, so a very good evening to everybody. I would like to say that this song has been written by Gunjan. तो आप खास गौर कीजिए. The words are very interesting. कौन कहता है सीने में अलमारियाँ नहीं होती. I mean, the first time I heard that, I was so caught up with the words because जब लिरिसिस्ट फॉर्मल लिरिसिस्ट लिखते हैं तो उसमें एक मीटर अलग तरीके से होता है. बट हियर आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड दैट द प्रोड्यूसर कुड राइट लाइक दिस. तो हियर 2 लाइन्स. सॉरी मेरे पास सुर नहीं है. कौन कहता है सीने में अलमारियाँ नहीं होती. कौन कहता है कौन कहता है इस छोटे से दिल में मीलों लंबी गहराइयाँ नहीं होती. कौन कहता है. Thank This you. is the Woo! So beautiful. There's one more song, if you don't mind. Just 2 lines. Yeah. We're just trying to promote our songs too. दिल को रोशन किया यूं तेरी हंसी ने दस्तकती हो जैसे रोशनी ने. दिल को रोशन किया यूं तेरी हंसी ने दस्तकती हो जैसे रोशनी ने. तू बन के आया हंसी आरज़ू, तू मिला तो ज़माना मिला. खुशियों को नया एक पैमाना मिला. फिर से आज मुझको बहकने का एक बहाना मिला.
मुझको बहकने का एक बहाना मिला, मुझको बहकने का एक बहाना मिला। Thank you. सो ये गाना समीक्षा ओसवाल एंड कीकू शारदा जिन्होंने बहुत रोमांटिक किरदार प्ले किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि क्यों अगर आप थोड़े साइज में ऊपर नीचे कैसे भी हैं तो क्या आप रोमांस नहीं कर सकते? आई मीन आपको प्यार करने का हक नहीं है? कहानियां मत बताइए, जी, जी, इन्हें जी। देखने दीजिए। जी, जी, जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हैट्स ऑफ टू यू सर, कि बहुत बहुत सारी कहानियां जो ये बोल रहे हैं कि इनके लाइफ पे है, ये भी बोल रहे हैं कि समीर सोनी जी उनके क्रश थे, फिर काफ़ी कुछ ये स्क्रीन पे दिखने वाला है। एग्जैक्टली तो पता नहीं कौन सी अलमारियों के पीछे या कौन सी अलमारियों में कौन से खाने के पीछे क्या क्या रहस्य छुपा था गुंजन जी की दिल की अलमारी के पीछे, जो सारी के सारी कहानियां यहाँ पर आ चुकी है। सो आई थिंक गुंजन जी, स्पेशल क्रेडिट टू योर हस्बैंड एक्चुअली। Everyone, in fact, everyone, the entire team, my husband, Sanjeev ji, everyone, Vibhu, Raju ji, I mean everyone. तो of course film जो होती है ना, sorry, भाग्यश्री, I mean you are amazing with the words. और मुझे नहीं पता था कि भाग्यश्री is so creative. Of course we were awed, always awed. Everyone is awed with Bhagyashree. Listen. This is your film. You get the credit. Let's end it here. Superb having, you know, the launch of the trailer and of the songs. Or Chandana ji, this is lovely having your voice. For all of us, I think सारी दिल की कहानियाँ, दिल के सारे जो क्या बोलते हैं इमोशंस है, वो सब उभर के बाहर आते हैं इन गानों से. So thank you so much and wish everyone all the best over here. Well, we would request you guys to just come forward for a picture. Okay, so we have a Q&A happening with media. And whenever the Q&A is done, whenever you allow me, I would love to invite my team as well, जो अमेरिका से आई है, because yeah, whenever you allow me, yeah, thank you. हेलो हेलो हेलो, मेरा सवाल भाग्यश्री मैडम से है. जी मुझे याद है जब मैंने प्यार किया देखा था, आप उस वक्त भी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन लग रही थी. आज भी बिल्कुल ऑन स्क्रीन और सामने भी वैसी ही लग रही हैं. शुक्रिया. मुझे याद है एक इंटरव्यू में सूरज बड़जात्या जी ने कहा था भाग्यश्री को सलमान को किस करना है. उस वक्त आप कंफर्टेबल नहीं थी, एक मिरर का सहायता ली गई थी. आज इस बोल्ड फिल्म को करने के पीछे ये जो परिवर्तन आया है इतने सालों में, किस तरह से आया आप में? देखिए, बोल्ड फिल्म है क्योंकि बोल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे कुंजन ने पहले ही कहा है कि बोल्ड सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि न्यूडिटी दिखाई जाए या अपनी भारतीय संस्कृति को भूला जाए. तो वही चीज़ मेंटेन की इस फिल्म में भी. इस फिल्म में भी किस नहीं है. एक भी किस नहीं है इस फिल्म में. हेलो गुंजन जी, मेरा सवाल आपसे है. जी. म्यूज़िक देखते ही मुझे ऐसा लगा, हम तो अभी छोटे हैं लेकिन उस समय के अगर पिक्चर्स देखते हैं तो वो गाना कुछ अलग ही होता था और आज वो लिरिक्स नहीं मिलते हैं. लेकिन ये गाने ने बहुत ज़्यादा मीन्स मन को खुशी दी है, स्पेशली लुकिंग एट हितेन एज वेल एज भाग्यश्री मैम. क्या आपको ये गाना देखने के बाद कितना आपको खुद अच्छा लगा? क्योंकि आजकल हम वो पॉप म्यूज़िक देखते हैं तो वो समय नहीं मिलता, वो चीज़ें नहीं मिलती है जो आज की उस समय की जो फीलिंग्स होती थी. आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों ने जब अपना ये काम देखा तो आपको कितना अच्छा लगा? सबसे पहले जो मैंने कहा अभी कि गुंजन जी ने ये जब लिखा है गीत, इस पे सारे इमोशंस बाहर आ गए हैं. दिल का दर्द समझ में आता है, प्यार का एहसास समझ में आता है, और चंदना जी का जो वॉइस था वो इतनी सुरीली आवाज़ है कि दिल में जाके बस जाती है. तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने सॉन्ग देखा ये, एंड इट वाज ब्यूटीफुल. आई मीन आई रियली लव्ड इट. If I may correct, so संजीव जी, can you come here? संजीव जी ने गाना लिखा, ये गाना मैंने नहीं लिखा.
हाँ ये गाना उन्होंने लिखा, हमारा गाना। ये चांदना जी के हस्बैंड हैं, तो चांदना जी की खूबसूरती से इंस्पायर होकर उन्होंने ये गाना लिखा है. Can we please have And the Chandna music ji director and too. sir right here एक बार के लिए इधर आइए, यहीं आइए। पे. And तालियां मेरे को तबीयत से नहीं बजी यार, because she is so talented. These two people, lovely. Thank you. Yeah, media. Next question. Mayur here from Beyond Bollywood Center. नहीं Sure, कोई बात नहीं. We loved it. I loved it. I enjoyed it. I बहुत मजा आया. पहली बार देखा. Super. First class. Anyway, sir, please carry on. भाग्यश्री जी ने मदद की है इस गाने की पूरी एडिटिंग में. No, I mean she's very creative. I didn't know that. Listen. This is the first time I've seen the song. Just leave it at that. It's beautiful. Anyway, Yeah, hi, Mayur here from Beyond Bollywood. Hi, Gunjan, good to see you. Hey. I think it was in 2020, I think, जब पहली बार इसका जिक्र हुआ था. Obviously 3 साल हो गए करीब, and आज हमने ट्रेलर देखा है. सबसे पहले तो आपको congratulations. Thank you Mira. और obviously जैसा कहा जा रहा है हॉली बॉली फिल्म, तो congratulations, आपने एक नई इंडस्ट्री क्रिएट की है. तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए कुछ इस पार या उस पार दोनों होना पड़ेगा. I didn't understand your question. You mean लोग जैसा जो ये ज्यादातर इस पार या उस पार ही होते हैं, बीच मझधार तो डूब जाते हैं. No, in the sense, obviously, you're calling it a Bolly and a Holly film. जी. तो because we live in a Hollywoodish area in America, और मैं we have great shooting locations जैसे मैंने बोला था, तो हमारा इंटेंट है कि हम अपनी हिंदुस्तान से अपने बॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी इंडियन फिल्म्स बनाएं, बट इन आवर Hollywoodish area in America. So that's why we call it Holly and Bolly, you know. And I didn't want to, like I said before, we don't want to incorporate nudity for the heck of it. I love touching bold stories because, you know, in a very sensible, mature way, ideally. Obviously, आपने जिक्र किया, you know, कि the grass is green, always green on the other side. आपने mention किया कि आप बर्तन मांजते हैं. बस शायद अमेरिका में डिशवॉशर ज़्यादा पाए जाते हैं. डिशवॉशर में डालना भी पड़ता है ना उसको धो के. निकालना ही पड़ता है. बर्तन सिर्फ अपने ही घर में मांजते हैं, अब ऐसे नहीं ये बर्तन मांजते हैं. डोर टू डोर सर्विस नहीं है ये. ये किसने क्वेश्चन पूछा? सॉरी सर, ऑब्वियसली आपने कभी बर्तन मांजे नहीं, ना तो डिशवॉशर में डाले, तो डिशवॉशर में ऐसे ही गंदे बर्तन तो नहीं डाले जाते ना, उन्हें भी धुला के फिर अंदर जाते हैं. मैंने इंडिया अमेरिका दोनों में बर्तन मांजे हैं. कोविड में माने हो गए ना, मांझी होगी. गुंजन, मेरा एक और सवाल है आपसे. जी. फिल्म की जो कैच लाइन है, ग्रे स्टोरीज ऑफ लव वर्सेस डिजायर्स, सो बेसिकली इस लव वर्सेस डिजायर्स के बीच में, यू नो, इंसान कितना टूटता है या कितना वो सुकून पाता है? देखिए, लव वर्सेस डिज़ायर्स, इसका तात्पर्य ये था कि आप रिलेशनशिप में होते हैं, आप किसी से शादीशुदा हैं 5 साल 10 साल 15 साल से, तो ऑब्वियसली लव तो होता ही है ना. आदत क्या होती है? आई मीन लव इज़ हैबिट, राइट? और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो तो उसमें आप पति पत्नी नहीं, भाई बहन, और बहुत तरह के रिश्ते बन जाते हैं एक दूसरे के साथ. पर डिज़ायर्स भी होती हैं समटाइम्स, यू नो. आई मीन यू कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स, लाइक यू मे हैव एस्पिरेशंस, यू नो. सो नाउ हाउ डू यू ड्वेल बिटवीन दोज? आपकी रूट्स, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज़ आपको खींचते हैं, और आपके यू नो आप ऑफ कोर्स प्यार भी करते हैं जिसके साथ होते हैं. नाउ डू यू परस्यू दोज डिज़ायर्स, और वो आप हमारी फिल्म में देखेंगे. हमारी एक मैं बात बोलना चाहूँगी, हमारी फिल्म येस बोल्ड हैं, बट इनमें वी हैव वोवन ब्यूटिफुल मैसेजेस विद इन दैम. सो कहीं ना कहीं महाभारत में जाके आप रामायण देखेंगे, यू नो. जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन मेरा हितेन से है. फिल्म 12 तारीख को आ रही है, और मेरे ख्याल से गौरी जी की फिल्म भी 12 तारीख को आ रही है. वो भी 12 तारीख को आ रही है. हैंडल में पारुल. करेक्ट. सेम. तो कैसा माहौल है? उनकी तो खैर पहली फिल्म है. जी. घर में कैसा माहौल है? दोनों अपनी फिल्मों के बारे में डिस्कस करते हो? नहीं. अपनी फिल्म की प्रमोशन करते, डिस्कस नहीं करते. देख लिए वो देखने आएंगी, फिल्म देखेंगी जब भी देखेंगी. और मैंने वो फिल्म देख ली है, उनकी फिल्म देख ली है. इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट. तो अब कुछ जजमेंट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे क्या. इट्स नाइस, लेट द ऑडियंस डिसाइड द फेथ. हम लोग को तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा ही लगता है. हमारा प्रोडक्ट जान से प्यारा है यार, मेहनत की है तो हमें तो प्यारा है. अब इट्स ओवर टू यू, हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू यू लाइक इट. पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद इतिहास में पहली बार होगा कि एक पति पत्नी की 2 अलग अलग फिल्म आ रही है. सेम, सही बोला है.
कब से बोल रही हैं? Hi, this is Sohail here over here. Hi, congratulations the entire team, गुंजन जी आपको. जैसे कि हमने देखा है कि इतने सारे ensemble cast है and everyone is so beautiful and whatever we saw is excellent, like we liked it so much. Thank you. इतने सारे स्टार कास्ट को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाना तो बहुत एक मुश्किल काम था, एज इफ लाइक दे सेड. तो दे वे द फर्स्ट चॉइस, या बहुत बार ऐसे होता है ना कि, और इसमें से कौन से ओरिजिनल चॉइस, इफ यू वांट टू आंसर दैट थिंग, एक और या फिर कहानी अगर ये अपने- अभी तो हमने कर लिया, अभी तो बता सकते हैं. नहीं हाँ, that is what I'm इनकी saying. ओरिजिनल चॉइस थी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण और कौन है और भी हैं यार, और विक्की भी थे, कौशल. मगर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें इनके साथ काम करना है. ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर. Yeah. एक मैं कौन होती हूँ चुनने वाली, एक कहानी अपने पात्र खुद चुनती है सबसे पहले तो. क्या बात है. थैंक यू. और दूसरी बात ये बोलूँगी कि जैसे आप सब मेरी आवाज़ से आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सब देख सकते हैं. आई एम नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, आई एम अ न्यू फिल्म मेकर. जैसे इन सब ने बताया, हमारे तरफ से हो ना, मीडिया से आप मैं पहले थे. पत्रकार Yeah, थी. that is what I'm जी saying. जी, हाँ, मैं it आई वाज अ makes us टीवी न्यूज़ happy, एंकर. हाँ, जी. हाँ. सो लेकिन इतने साल 19 साल हो गए थे, मतलब 17-18 साल हो गए थे छोड़े हुए इंडिया को, और एक कीड़ा था कि नहीं कुछ ना कुछ, आई मीन वी वांट टू ब्रिंग क्रिएटिव फिल्म मेकिंग हेयर. सो मैं नहीं जानती थी, मेरे पास कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कुछ नहीं था. तो the only way I knew was to, and my business is Job Genie. I am in HR industry for 19 years in America. I approached them for whatever way I could, Insta, Facebook, और कई बार जैसे कीकू ने मुझे 1 महीने बाद जवाब दिया. लोगों ने बोला नहीं कीकू नहीं आएगा, 2 एपिसोड छोड़ने पड़ेंगे उसको कपिल शर्मा शो के, एंड यू कांट अफोर्ड हिम. ऐसा भी बहुतों ने बोला. बट अगेन, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल, People. you know. Fantastic. So